Hello kids, in this video of IMO for class 6, I am going to start chapter 9 that is data handling. Start करते हैं. If asterisk represent 5 erasers, then numbers of symbol to be drawn to represent 65 eraser is. ठीक है, यहाँ पर 1 का मीन्स है 1 symbol is equal to 5 eraser. यहाँ पर हमें चाहिए कितने 65, तो 65 divided by 5 will be equal to 13 means B is the right option. Now, direction 2 to 3, the sale of number of spoons on different days of a week is shown below. Study the pictograph carefully and answer the following question. How many more spoons were sold on Friday than on Wednesday? Friday को कितने एक्स्ट्रा हुए सेल? तो देखो जो सेम है वो तो कट करते हैं. 1 यहाँ से कट किया, 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 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ. तो हाउ मेनी लेफ्ट? 1 2 3. 3 इमेज एक्स्ट्रा है और ईच इमेज इज इक्वल टू 4 स्पून. तो 3 into 4 is equal to 12 spoon. So B is the right option. Now question number 3. If 1 spoon was sold for rupees 70, then what was the total earning on Tuesday? तो अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्पून्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 8 इमेज है तो नंबर ऑफ स्पून्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ स्पून्स इज इक्वल टू 8 इमेज इंटू 4 बिकॉज 1 इमेज इक्वल टू 4 स्पून है तो 8 इंटू 4 क्या हो जाएंगे? 32 स्पून्स. अब इन्होंने पूछा अर्निंग, टोटल अर्निंग क्या होगी? 1 स्पून सोल्ड होता है 70 का तो टोटल अर्निंग क्या हो जाएगी? टोटल अर्निंग इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई विथ 70. अब 0 तो होगा ही, अब 7 से मल्टीप्लाई करो. 7 2 14 की 4 पावर आई 1, 7 3 21 और 21 प्लस 1 क्या होगा? 22. तो टोटल अर्निंग होगी 2240. D is the right option. The Delhi school's football team washed bikes every Sunday for a month to raise money for the local children's hospital. The students charged ₹100 for each bike they washed. The pictograph below shows the total number of bikes washed by the team. What is the total amount of money raised by the football team? तो सबसे पहले इमेज काउंट करते हैं. यहाँ है 3, यहाँ है 2, यहाँ है 2, यहाँ 1 2 3 4 5. टोटल का सम क्या होगा? 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 5 12. 12 इमेजेस है और ईच बाइक 1 इमेज इज इक्वल टू 15 बाइक और 1 बाइक को वॉश करने में लगे 100. तो नाउ 15 2 30 की 0 पावर आई 3. 15 + 3 क्या होगा? 18 इंटू हमने किया 100 मीन्स टोटल फंड जो होगा दैट इज 18,000 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. If this image represent 2 person, then these image represents person. तो देखो 2 2 2 2 हाफ इमेज है means 1. 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 1 9 means A is the right option. In a tally marks, a group of 8 marks represented as this is 8. 5 + 3 8 means B is the right option. Now direction for 7 to 8, the pictograph shows the production of cars by 5 factories in a year. Study the pictograph carefully and answer the following question. What is the total productions of car by factories P and S? P ये है मीन्स यहाँ पर इमेजेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 इमेजेस है एंड उसके साथ S है, S के पास 4 है तो 6 + 4 6 + 4 टोटल इमेजेस कितनी हो गई? 10 और 1 image is equal to 150 cars means 150 multiplied with 10 will be equal to 1500. So which option is correct? Option A is correct. Now question number 8. What is the difference between the production of cars by factory Q? Factory Q and R together. R और Q को हमें साथ में रखना है and the production of cars by factory T और T से इसका डिफरेंस पता करना है. तो now काउंट करो number of cars in Q क्या हो जाएगा? 3. यहाँ पर R के लिए 1 2 3 4 5 5 ऑल टुगेदर दोनों की कितनी हो गई? 8. नाउ T के लिए 1 2 3 4 5 6 7 7 है. What is the difference? 8 minus 7. 8 minus 7 will be equal to 1 and 1 image is equal to 150 cars means T is the right option. 150 cars extra है. 9.
Study the given table carefully and answer the following questions. How many schools have planted more than 7 trees? तो देखो this is more than 7 because ये हो गई 12. तो एक तो ये हो गया, this is 7 और ये है 10 means दूसरा स्कूल, and this is 8 means कितने schools हो गए जिसने more than 7 किया? 3. तो B is the right option. Now next question. Find the total number of trees planted by all the 5 schools. 12, यहाँ है 7, यहाँ है 10, यहाँ है 5, ये है 8. इनको प्लस करो. 2 plus 7 9, 9 plus 5 14, 14 plus 8 22 की 2 power I 2. तो ये हो गया 4. 42 means D is the right option. The graph shows the marks scored by Raghav in each subject in exam. Study the graph carefully and answer the following question. In which subject he got second highest mark? This is the highest and this is the second highest. और ये second highest किसके लिए है? English के लिए. Means C is the right option. Find the difference between the marks scored in maths and Sanskrit. Maths क्या है? This one. ये है maths और ये है यहाँ पर. Means math का score हो गया 40 and Sanskrit this one. This is the highest mark. और अगर हमने लाइन ड्रॉ की तो इसकी वैल्यू क्या है? 90. तो डिफरेंस क्या होगा? 90 minus 40 is equal to 50. So A is the right option. Now table 1 and table 2 shows the number of government employees in some cities. Study the table and answer the following question. तो क्वेश्चन देखते हैं. How many employees does each rectangle represent? तो देखो ये वाला चेन्नई का उठाते हैं. चेन्नई में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 3000 और यहाँ बॉक्सेस कितने हैं? 1 2 3 4 5. तो one rectangle box is equal to 3000 divided by 5. 5 6 जा 30. तो one box represents 600. So B is the right option. Which of the following is the correct representation of the number of employees in Mumbai? Now Mumbai का नंबर क्या है? 3600. तो 3600 divided by 600. 0 से 0 कैंसिल. 6 6 जा 36 means 6 box होने चाहिए. 1 2 3 4 5 6 means B is the right option. If car image represent 25 cars, then how many cars does these represents? तो ये 4 हैं तो 25 into 4 is equal to 100 means A is the right option. A pictograph shows different subject books which are kept in a library. Study the pictograph and answer the following question. How many English books are there in the library? English है this one. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 image है और 1 image is equal to 100. तो 8 into 100 will be equal to 800. Means option A is correct. How many more science books than history books are there in library? Now अब देखो history books कितनी है? 2. Means 2 multiplied with 100 is equal to 200. साइंस बुक है 4 और इंटू 100 इज इक्वल टू 400. इन दोनों का डिफरेंस 400 माइनस 200 इज इक्वल टू 200. मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. एक तो तरीका ये था, आप अदरवाइज ऐसे भी कर सकते थे. सेम बुक्स कैंसिल. हाउ मेनी लेफ्ट? 2 लेफ्ट तो 2 इंटू 100 200. The points out of 100 obtained by 28 students in a quiz are listed as below. The number of students who obtained more than or equal to 50 point is. तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 स्टूडेंट्स हैं जिसने मोर देन और इक्वल टू 50 स्कोर किया. तो बी इज द राइट ऑप्शन. अ पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ. तो ए इज द राइट ऑप्शन. द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन 5 days of a week. The number of pen sold on Monday is dash more than the number of pen sold on Friday. Monday को कितने हैं? 5 plus 5 plus 5 plus 2 मीन्स टोटल हो गए 17. अब फ्राइडे का चेक करो कितने हैं? 7. तो दोनों का डिफरेंस 17 minus 7 is equal to 10
ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे भी कर सकते थे और आप ऐसे भी कर सकते थे, सेम था, मीन्स इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया, हाउ मच लेफ्ट, 5 + 5 10, ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता था। नाउ अचीवर सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 21, the line graph shows the number of teddy bears Latika sold from January to April. If she earned 484 for every teddy bear sold, then how much more did she earn in April than in March? April and March का difference लेना है। This is March. मार्च में नंबर ऑफ टेडी बियर हो गए 30, कितने हो गए 30, और दिस इज फॉर अप्रैल, तो अप्रैल में जो टेडी बियर हो गए 40, तो डिफरेंस क्या होगा 40 माइनस 30, टोटल डिफरेंस आया 10, और वन टेडी बियर की कॉस्ट है 484, तो 484 इंटू 10 इज इक्वल टू 4840, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। The given table shows the number of laddus made by Mrs. Sharma in 6 weeks. How many total laddus did she makes in these 6 weeks? तो काउंट करो, 5 + 5 और +4 14, यहाँ है 9, यहाँ है 7, यहाँ है 6, यहाँ है 5, यहाँ है 8, प्लस करते हैं 4 + 9 13, 13 + 7 20, 20 + 6 26, 26 + 5 31, 31 + 8 39 की 9, पावर आई 3, तो 3 + 1 49, मीन्स दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ अब क्या क्वेश्चन में पूछा है, सेकेंड पार्ट, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ लड्डूज मेड इन द वीक 2, मीन्स इस वीक 2 में ऑफ लड्डूज मेड इन द वीक 4 and 6 टुगेदर, 4 and 6 को कंबाइन करना है, तो 6 + 8 क्या हो गया, तो देखो 2s के लिए क्या हो जाएगा, वीक 2 का है 9, और जिनको कंबाइन करना है वीक 4 में 6 प्लस वीक 6 में 8, तो ये क्या हो जाएगा 9/14, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, 49 और 9/14। Study the pictograph and find the value of p minus q plus r divided by 98 into s। तो देखो आप दो तरीका है कि आप ईच इमेज 98 है तो उसको कैलकुलेट करके रखो, या सिर्फ p की इमेजेस के हिसाब से भी रख सकते हो। जैसे इन्होंने लिखा है द नंबर ऑफ स्टफ टॉय एनिमल्स जस्सी एंड जॉय बोथ हैव इज p। जस्सी के पास है 2 इमेज और जॉय के पास है 2.5, तो अगर इमेज की बात करें तो p की वैल्यू हो गई 4.5, और अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या होगा 4.5 मल्टीप्लाइड विथ 98, दैट इज इक्वल टू 4.5 इंटू 98 को क्या लिख सकते हैं 100 - 2, मीन्स 4.5 मल्टीप्लाइड विथ 100 माइनस 4.5 मल्टीप्लाइड विथ 2, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 450 माइनस 9, दैट इज इक्वल टू 441, मीन्स p की वैल्यू हो गई 441। नाउ जावेद हैज क्यू मोर स्टफ टॉय एनिमल्स देन जस्सी। जावेद के पास है 3 और जस्सी के पास है 2, तो जावेद के पास 1 एक्स्ट्रा है, तो क्यू की वैल्यू अगर इमेज की बात करें तो 1 है, अदरवाइज क्या है 98। नाउ द टोटल नंबर ऑफ स्टफ टॉय एनिमल्स ओन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट इज आर। अब टोटल टॉयज है आर, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड हाफ, मीन्स r की वैल्यू हो गई 12.5, और वी कैन से 12.5 मल्टीप्लाइड विथ 98, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 मल्टीप्लाइड विथ 100 माइनस 12.5 मल्टीप्लाइड विथ 2, जैसे हमने यहाँ पर किया था, तो दिस विल बी इक्वल टू 1250 माइनस 25, दैट इज इक्वल टू 1225, मीन्स r की वैल्यू 1225। Now, the number of stuffed toy animals Joy has less than Javed। अब जावेद एंड जॉय के बीच का जो डिफरेंस है, इसके पास 3 है और उसके पास 2.5 है, तो इनका जो डिफरेंस है वो 0.5 का है, हाफ का है, मीन्स 98 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा 49, मीन्स s की वैल्यू या तो आप 0.5 लिख लो या आप लिख लो 49, करेक्ट है। नाउ इन वैल्यूज को यहाँ पुट करना है, तो p की वैल्यू है 441, q की वैल्यू है 98, r की वैल्यू है 1225 डिवाइडेड बाई 98 इंटू s, दैट इज 49, 49 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ देखो 1 + 5 क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर रही हूं मैं,
तो 1 + 5 6, 4 + 2 6, 4 + 2 6 और 1 -98 डिवाइडेड बाई 2। तो माइनस किया, 16 से 8 गया 8, 15 से 9 माइनस किया तो 6, यहाँ 5, यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, तो 784 A is the right option. Then he made the frequency table to show the number of times each vowels was used in the first sentence of several books. She had read which of the following list shows the vowels in order of the most used to the least used. तो हमें बनाना है कि कौन सा सबसे यूज हुआ से लेके सबसे कम तक। तो देखो A की वैल्यू क्या है 9, इसकी वैल्यू है 8, यहाँ है वैल्यू 5, यहाँ है 7, यहाँ है 2। सबसे पहले आएगा 9 मीन्स ए, उसके बाद आएगा 8 मीन्स ई, उसके बाद होगा ओ, ओ मीन्स 7, 9 8 7, तो ओ यहाँ है तो सी इज द राइट ऑप्शन। आई की वैल्यू हो जाएगी 5 एंड देन यू की वैल्यू 2। The given line graph shows the number of cars and motorcycles sold from September to December. ये है कार, ये है मोटरसाइकिल्स। How many more cars than motorcycles did sell in October? ये है अक्टूबर, और अक्टूबर में जो मोटरसाइकिल थी 50 प्लस हाफ, यहाँ पर 100 एंड 50 के बीच का हाफ, तो यहाँ पर क्या होगा 75 मोटरसाइकिल्स हैं। और ये है कार, कार का पॉइंट है अक्टूबर का, दिस वन मीन्स 150। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 150 माइनस 75 दैट इज इक्वल टू 75 मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल एनी डाउट देन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।